اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ عزیزان گرامی، آج کی اس مبارک شام میں ہم اپنی مصروفیتوں کے باوجود یہاں کچھ خاص باتیں، اچھی باتیں، فائدہ مند باتیں سننے کے لیے جو ہم جمع ہوئے ہیں، ہمارا اس جمع ہونا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمارے اس جمع ہونے کو اللہ تعالیٰ بابرکت بنائے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے میں جناب شہاب الدین صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ترجمہ: البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جی نہ چاہے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم بھی ہو جائے مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے۔ بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ جزاک اللہ خیر جناب شہاب الدین صاحب۔ آج کا عنوان ہے سیکریٹس آف ہائی پرفارمنس، 8 crucial steps to becoming the best you possible۔ اور اس موضوع کا پریزنٹیشن دینے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں جناب عارف عرفان صاحب۔ عارف عرفان صاحب اکاؤنٹنگ اور فائنانس میں 22 سال سے زیادہ کا تجربہ رکھنے والے ایک تجربہ کار مالیاتی ماہر ہیں۔ انہوں نے داری اکیڈمی کی بنیاد رکھی جو کہ پیشہ ورانہ افراد کو
बाख्तियार बनाता है। आरिफ इरफान साहब के बारे में अगर हम देखेंगे तो वो बहुत सारे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस और फर्म से जुड़े हुए हैं, जैसा कि ICFAI कॉलेज, ICFA ग्रुप इंडिया और बिन मालिक कॉन्ट्रैक्टिंग ग्रुप UAE। और जब हम दारी एकेडमी के बारे में देखते हैं, जिसके जिसके फाउंडर ये हैं, तो दारी एकेडमी इज़ ए प्रोमिनेंट प्लेटफॉर्म फॉर सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट US candidates. Their teaching approach combines expertise and creativity to cultivate students into forward-thinking leaders. Dari Academy is a committed to complete transformation, focusing on the skills and knowledge essential for professional careers. Students and working professionals from the Middle East and India are part of Dari Academy community. तो यह था तारुफ दारी एकेडमी का, जिसके फाउंडर जो है जनाब आरिफ इरफान साहब है। अब मैं आरिफ इरफान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपना प्रेजेंटेशन पेश करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिही हुवा इज्तबाकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अजीज रुफ़क़ा, सबसे पहले मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र बजा लाता हूँ। उसने हमें न कि मुसलमान बनाया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हमें पैदा फरमाया। दूसरी बात यह है कि आज जो मेरा प्रेजेंटेशन है वो है सीक्रेट्स ऑफ हाई परफॉर्मेंस, 8 क्रूशियल स्टेप्स टू बिकमिंग द बेस्ट यू पॉसिबल। तो सबसे पहले आइए कि जो मैंने आयत आप लोगों के सामने रखी है, वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिही हुवा इज्तबाकुम, उस पे थोड़ी सी रोशनी अगर हम डालने से पहले अगर एक हमारा जायजा लें हमारे सोसाइटी का, तो हम दो तरीके के लोग जो है ना हम इस दुनिया में हमारे सोसाइटी में पाए जाते हैं। सबसे पहला तबका वो है कि वो खुदा को अभी तक नहीं पहचाना सही तरीके से। जब खुदा को नहीं पहचाना तो खुदा क्या चाहता है उन्हें नहीं मालूम है, और ऐसे भटके हुए कई जो है ना हमारे साथी हमारे साथ मौजूद हैं। दूसरा तबका ये है कि बाशऊर तबका है, वो है हमारा तबका जो खुदा को पहचानते हैं और खुदा का जो मैसेज है उसको भी समझते हैं। तो अगर हम इन दोनों के कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को हम गौर फिक्र करेंगे तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे सामने आते हैं। सबसे पहला जो तबका है, अगर हम रोशनी डालें न्यूज़पेपर या मैगजीन या टीवी चैनल्स पर भी, तो हम देखते हैं कि इनके अंदर ऐसे सिफात मौजूद है कि छोटी सी एक नाकामी पर वो जो है ना खुदकुशी करते हैं, या जायदाद के जिमन में अपने माँ बाप या भाई को कत्ल करते हैं। और ऐसे हालात जो है ना हम न्यूज़पेपर में हम देखते हैं कि हत्ता के अपने बच्ची पर भी अगर शराब पी के हैं तो अपने बच्ची पर भी जो है ना वो आंख उठाकर बुरी नजर से देखते। तो ये जो हालात हैं, इस हालात के मद्देनजर अगर हम गौर करें तो दूसरा जो तबका है वो तबका जो है ना हमारा तबका है, वो मुसलमान है जो अल्लाह को पहचानता है और अल्लाह के मैसेज को पहचानता है। तो क्या अल्लाह तबारक ताला हमसे ये नहीं पूछेगा कि आपके इर्द गिर्द इतने सारे जो है ना काम जो मैं पसंद नहीं करता हूँ वो
آپ کے نظروں کے سامنے گزرتے ہیں لیکن آپ کے اندر، آپ کے پیشانی پر جو ہے نا کچھ پسینہ نہیں آتا، تو یہ سوال ہم سے اللہ تعالیٰ ضرور کریں گا. تو اسی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ and strive for Allah with striving due to him and he has chosen you. انہیں اللہ کی راہ میں مشقت کرو جیسا کہ مشقت کرنے کا حق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا. تو مسلمان کا جو ڈیفینیشن ہے اس دائرے کے اندر یہ آیت ہمارا فٹ ہوتا ہے، فٹ ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اپنے کام کے لیے چن لیا. اب دیکھیے کہ اس دنیا کے اندر کئی ہزار کروڑوں افراد ہیں، ان تمام میں سے ہم کو مسلمان بنایا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا. کہ یہ آیت سوٹیبل نہیں ہے ہمارے لیے، یہ ڈائریکٹ ہمارے لیے آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا. تم اللہ کی راہ میں جدوجہد کرو، مشقت کرو جیسا کہ کا حق ہے جدوجہد کرنے کا. دو کانٹیکسٹ ہے. پہلی تو یہ خوشخبری ہے ہمارے لیے، یہ مسرت کی بات ہے اور بہت جو ہے نا اسٹیٹس کی بات ہے ہمارے لیے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایک ریسپانسبلٹی بھی ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے ان ہزاروں کروڑوں جو ہے نا لوگوں میں سے ہمیں چن لیا. تو پھر یہ ہماری ریسپانسبلٹی بھی عائد ہوتی ہے کہ اس ذمہ داری کو ہم بخوبی نبھائیں. ہم کب جو ہے نا اس ذمہ داری کو بخوبی نبھا سکتے ہیں؟ ہمارے ایک حدیث کا مفہوم ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو اس سرزمین پہ بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ فلاں بستی کو الٹ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جبرائیل علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ وہاں ایک بندہ ایسا ہے کہ آپ کے بندگی میں غافل نہیں ہے، ہر سیکنڈ ہر لمحہ آپ کے بندگی میں جو ہے نا وہ گزر رہا ہے، کیا میں اس بندے کو بھی اس بستی میں سے الٹ دوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں، پہلا کام اس شخص سے شروع کرو، وہاں سے الٹ دو. اس شخص کو پہلے الٹو، بستی کو اس کے اوپر، اور پھر بستی والوں کو. تو پھر معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانیاں ہمارے ارد گرد اتنے ہو رہی ہیں لیکن ہمارے ماتھے پہ شکن تک نہیں آئی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو غصہ آ گیا اور فرمایا کہ اس شخص کو بھی جو ہے نا الٹ. تو یہ ریسپانسبلٹی ہماری ہے. ہمارے سامنے ایک طبقہ ہے جو بھٹکا ہوا ہے، اور ہم کو کرنا کیا چاہیے؟ ان تک اس دعوت کو پہنچانا ہمارا کام ہے، ہمارا فرض ہے. کیسے پہنچانا؟ دو چیزوں سے پہنچانا پڑے گا. سب سے پہلے ہمیں خود عمل کرنا پڑے گا، یعنی ہمارے کریکٹر سے لوگوں کو انسپائر کرنا پڑے گا، پھر اس کی دعوت لوگوں تک پہنچانا پڑے گا. یہ دو چیزیں جب تک ہم نہیں کریں گے یہ ریسپانسبلٹی ہم فلفل نہیں کر سکتے. تو آئیے ہم اس کے کانٹیکسٹ میں نے یہ ٹاپک چنا ہے. اس سے یہ ٹاپک میں جانے سے پہلے پھر میں آپ لوگوں کے سامنے اس ٹاپک جو میں نے ابھی لی اس آیت کے ذریعے سے کہ ہمیں کیسا اس کو فلفل کرنا چاہیے، کیسے فلفل کرنا چاہیے، اس کے لیے ہمیں ہائی پرفارمنس کی ضرورت ہے. ہائی پرفارمنس کے لیے وی ہیو ٹو بیکم دا بیسٹ آف واٹ وی ہیو ٹوڈے. ارتقاء، شخصیت کی ارتقاء جو ہے نا جب تک نہیں ہوتی، ہم کردار، اپنے کردار کو جب تک جو ہے نا لوگوں کے سامنے جو اسلامک کیریکٹر بلڈنگ، اسلام ہمارے اندر جو کیریکٹر دیکھنا چاہتا ہے، قرآن ہمارے اندر جو صفات پیدا کرنا چاہتا ہے، ان صفات کو ہم جب تک ہم ڈیولپ نہیں کریں گے ہم جو ہے ہائی پرفارمنس کو ریچ نہیں ہو سکتے. اور جب تک ہم ہائی پرفارمنس نہیں کریں گے ہم جو ہے نا اس دعوت کو لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے.
इससे बड़ा टास्क क्या है जो हाई परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट के लिए दरकार है? तो थोड़े से बातें मैं आप लोगों के सामने इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के ताल्लुक से पहले मैं बातें थोड़े सामने मैं आपके सामने रखूंगा। फिर आगे चलकर जो हाई परफॉर्मेंस हमें करना है, हाई परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट बनना है, तो उसके थोड़े स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स को भी हम फिर आगे हम समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इस आयत के रोशनी में हमें करना क्या है। सबसे पहला काम हमें जो करना है वो जो है ना, अपने रिश्ते को अल्लाह ताला से मजबूत करना है। सबसे पहला काम अपना जो रिश्ता है अल्लाह ताला से मजबूत करना है। जब तक हमारा रिश्ता, तीन रिश्ते ऐसे हैं जो मैं आपको जिक्र करूंगा, और आखिर में जो हाई परफॉर्मेंस का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट का थर्ड स्टेज जो है उसी के ताल्लुक से मद्देनजर कॉन्टेक्स्ट है। मगर ये बात आई, इससे पहले मैं मुकम्मल करूंगा तो आप कनेक्ट हो जाएंगे इस टॉपिक। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो हमारा अल्लाह ताल्लुक से हमारा क्या, अल्लाह तबारक व तआला से हमारा क्या ताल्लुक, कैसे जो है ना हम अल्लाह ताला से बातचीत करें। नमाज पढ़ते हैं तो हम अल्लाह ताला से कनेक्ट हो सकते हैं। खुशू और खुजू जो मामला है, क्या हम रिवायती तौर पे नमाज पढ़ते हैं? क्या हम सोच समझ कर नमाज पढ़ते हैं? क्या ऐसी जो है ना बस नमाज का वक्त हो गया, उठे और चले गए, और अल्लाह ताला से हमारा कनेक्शन नहीं हुआ? क्या सिर्फ नमाज में ही हमारा कनेक्शन होना चाहिए? अल्लाह ताला से जब तक हमारा रिश्ता मजबूत नहीं होगा, हम जो है ना इस दावत दीन निकाम को लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। और बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम रिफ्लेक्ट करेंगे तो पहली चीज हमारी नमाज, नमाज में हम अल्लाह ताला से कितना कनेक्ट होते हैं। आखिरत के अंदर सबसे पहली जो चीज हमसे पूछी जाएगी वो नमाज के ताल्लुक से। और नमाज ऐसे नमाजों को अल्लाह ताला हमारे मुंह पर मार देगा जिसके अंदर खुशू और खुजू नहीं है। तो सबसे बड़ा पैमाना, पहला पैमाना वो है कि हमारे नमाज को हम देखें, क्या जो है ना हमारी हालत, नमाज में कितना हम फोकसली अल्लाह ताला से कनेक्ट होते हैं और फोकसली अल्लाह ताला से बात करते हैं। अल्लाह ताला ने इजाजत दी है कि नमाज के रुकू के अंदर, सजदे के अंदर दुआएं हम कर सकते हैं, अल्लाह ताला से बातचीत कर सकते हैं, इवन अपने ओन लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। जो जो मैंडेटरी थिंग्स है उसको कंप्लीट करने के बाद जब हम सजदे में जाते हैं तो अल्लाह ताला से बातचीत करते हैं। उसके अलावा हम, हमारा कनेक्शन अल्लाह ताला से कैसे, हमारा दिल अल्लाह ताला से कितना जुड़ा हुआ है, और इस चीज को हम जब तक नहीं पहुंच सकते जब तक हम कुरान मजीद को कनेक्ट नहीं, कुरान मजीद को माने के साथ नहीं समझे, कुरान मजीद को हम उसको समझने की, उसको तदब्बुर नहीं करें, तब तक जो है ना हम अल्लाह ताला से कनेक्ट, ये चीज हमें याद रखना चाहिए। सबसे पहला जो रिश्ता हमें मजबूत करना है वो अल्लाह ताला से हमारा कनेक्शन, और उसका बेस्ट फार्मूला है कुरान मजीद और नमाज। इन दो चीजों से हमारा कनेक्शन अल्लाह ताला, और जिक्र, अल्लाह 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 का जिक्र और दुआ, ये पूरे चीजें जो है ना हमारी आती हैं। हम जितने गहराई से, जितने तवक्कुल से हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, हम अल्लाह ताला से बातचीत करते हैं, उतना कनेक्शन हमारा पैमाना हम खुद देख सकते हैं। ये पहली चीज है जो हमें करनी चाहिए। फिर दूसरा जो रिश्ता है वो रिश्ता हमारे घर वालों से, हमारे घर वालों से हमारा रिश्ता क्या है। जब तक हमारा रिश्ता अल्लाह ताला से मजबूत नहीं होगा, दूसरे जो रिश्ते हैं वो पहले हमारे घर वाले से, वो रिश्ता भी मजबूत नहीं हो सकता। तो देखना ये है कि हम हमारे बीवी और बच्चों से हम कैसा रवैया अख्तियार करें। क्या जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपने इस दीन को कायम करो, तो पहला जो काम है वो अपने जात पर दीन को कायम करना।
दूसरा जो काम है अपने घर वालों पर उस दीन को कायम करना। फिर बात करेंगे तो सोसाइटी। तो एक जायजा लें कि हमारा रिश्ता हमारी बीवी से कैसा है, हमारे जोजैन से हम जो है ना हमारे बीवी से कैसा जो है ना हम रिश्ता रखते हैं, कैसी बातचीत करते हैं, कैसा बिहेव करते हैं। हमारे दोस्त, हमारे नौकर और हमारी बीवी, ये तीन लोग हैं जो हमको सही तरीके से पहचाना, इन एंड आउट जानते हैं। पहली बीवी, दूसरा जो है ना हमारा दोस्त, तीसरा जो है ना हमारा नौकर। अगर ये तीन लोग गवाही दे दिए कि ये नेक इंसान है, अल्लाह से खौफ खाते हुए अपनी जिंदगी को बसर करता है, तो यकीन जानिए कि वो इंसान बेहतर इंसान। तो दूसरा जो रिश्ता है वो रिश्ता हमारे घर वालों से। हमारा जो कैरेक्टर है वो सबसे पहले असरअंदाज हमारे घर वालों पर होता है। अगर हम हमारे घर वालों को कन्विंस नहीं कर सके इस बात की कि हम अल्लाह को मानते हैं और इसकी दावत लोगों तक पहुंचाते हैं, तो घर वालों तक हम कहाँ तक पहुंचाए हमारे किरदार से। दूसरा जो रिश्ता है वो मजबूत करने का वो ये फैमिली से। फिर तीसरा रिश्ता वो है सोसाइटी। हमारा रिश्ता जब अल्लाह से गहरा हो जाएगा, हमारा रिश्ता जब हमारे घर वालों से गहरा हो जाएगा, तो फिर सर्कल ऑफ जो इन्फ्लुएंस है वो सोसाइटी तक पहुंचेगा लामहला। जब तक ये दो रिश्तों को हमने फिक्स नहीं किया, हम तीसरा जो रिश्ता जो है सोसाइटी से, जो लोगों को दीन की दावत देना है, चाहे वो मुसलमान भाई क्यों ना हो, चाहे वो गैर मुस्लिम भाई क्यों ना हो, उन तक हमारी दावत पहुंचना है, तो ये दो रिश्तों को हमें मजबूत करना है। और तीसरा जो रिश्ता है वो हमारा सोसाइटी का रिश्ता है। फिर जो बात यहाँ पर आती है कि जब ये तीन रिश्ते मजबूत हो जाएंगे, आपके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, तो देखिए ऑटोमेटिकली सोसाइटी के अंदर चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर जो अल्लाह ताला फरमाया कि मशक्कत करो अल्लाह की राह में, जैसे मशक्कत करने का हक है, और अल्लाह ताला ने तुम्हें अपने काम के लिए चुन लिया। तो ये जो चीज है, तो जो जो मशक्कत है, तो जिहाद जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अपने नफ्स को काबू में रखना, अपने ख्वाहिशात को काबू में रखना, अल्लाह की दी हुई किताब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के रोशनी में अपनी जिंदगी को गुजारना, ये दरअसल मशक्कत करना है अल्लाह की राह। और जो इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है मशक्कत का, एंडिंग है, जो हमें खुतबात में भी मिलता है कि इसका एंडिंग, वो एंडिंग ये है कि हम खुद जन्नत में नहीं जाना, हम खुद अल्लाह को राजी नहीं करना, हमारे घर वालों को भी जन्नत की तरफ लेके जाना। और ये जितना तबका है हमारा सोसाइटी में, हमारा इन्फ्लुएंस जहां जहां है, हमारे ऑफिसेस, हमारे बिजनेसेस, हमारे रिश्तेदार, हमारे जो है ना पड़ोस, हमारे जो है ना रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे अहबाब, हमारे गैर मुस्लिम साथी, इन तक इस बात को पहुंचाना और उन तमाम चीजों को अल्लाह की रजा की तरफ लेके आना, ये दरअसल एंडिंग पॉइंट ऑफ अल्लाह की राह में मशक्कत करना, ये कॉन्सेप्ट है। अब आइए अल्लाह ताला और एक आयत में सूरह अशूरा में फरमाता है, एंड दोज हु स्ट्राइव फॉर अस वी विल श्योरली गाइड देम टू आवर वेज एंड इंडीड अल्लाह इज विद द गुड डूयर्स ऑफ। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हमारी राह में जिद्दोजहद जो करेंगे, हम उन्हें अपना रास्ता बताएंगे, और वो है सीधा रास्ता। इहदिना सिरातल मुस्तकीम जो हम बात करते हैं, वो यही जो है ना रास्ता है। और अल्लाह ताला फरमाता है वी विल श्योरली गाइड देम टू आवर वेज, इधर जाना, कैसी जिंदगी बसर करना, कौन से काम से रुक जाना और कौन से काम को करना, ये तमाम चीजें अल्लाह ताला खुद बताएंगे। मगर शर्त क्या रखा अल्लाह ताला, हमारी राह में जिद्दोजहद करो, और हमारी राह में जिद्दोजहद करना इज नथिंग बट बिकमिंग द बेस्ट यू पॉसिबल
اور بیکمنگ دا بیسٹ پاسبل کے لیے ہائی پرفارمنس. دس از واٹ آئی ووڈ لائک ٹو کنیکٹ ود دا ٹاپک. اب دیکھیے یہاں پر تین جو ہے نا مین سیکشنز ہیں جو ہائی پرفارمنس کے لیے ہمیں ضرورت ہے. پہلا ہے ہمارے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا. پہلا ہے ہمارے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا. یہ پہلا سیکشن. ایک بات آپ نے دیکھا ہوگا, بگن وتھ اینڈ ان مائنڈ. کون سا بھی دنیا کے اندر اگر ہم کام کرنا ہے, ہمارے دماغ میں سب سے پہلے جو ہے نا اس کا خاکہ تیار ہونا چاہیے, اور تب کہیں جا کر ہم اس کام کو شروع کر سکتے. ہمارا مائنڈ سیٹ بنانا یہ بہت بڑا جو ہے نا کام ہے. 50% جو ہے نا اچیومنٹ یہی ہو جاتا ہے. مائنڈ سیٹ, پازیٹیو مائنڈ سیٹ بول سکتے ہیں, گروتھ مائنڈ سیٹ بول سکتے ہیں. کئی سارے چیزیں جو ہے نا یہاں پر ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں. اس مائنڈ سیٹ ایک سیکشن ہے. جب تک ہم اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج نہیں کریں گے, درست نہیں کریں گے, کو گروتھ مائنڈ سیٹ نہیں بنائیں گے, ہائی پرفارمنس اچیو نہیں ہو سکتا, بیسٹ آف دا بیسٹ نہیں بن سکتا. دوسرا جو سیکشن ہے وہ بیہیویئر. دوسرا جو سیکشن ہے وہ بیہیویئر ہے, اور تیسرا جو سیکشن ہے وہ ٹیم ہے. پورے اثر کو اگر اس کے اندر کانٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا, اور ایمان لانے کی وجہ سے ہمارا مائنڈ سیٹ کیا چینج ہوتا, ہمارے تعلق سے, ہمارے فیلیورز کے تعلق سے, ہمارے جو چیلنجز آتے ہیں اس کے تعلق سے, ہمارے جو سیٹ بیکس آتے ہیں اس کے تعلق سے ہمارا مائنڈ سیٹ کیسا چینج ہوتا ہے جب ایمان لاتے ہیں. یہ ہے مائنڈ سیٹ. اور پھر بیہیویئر یعنی ایکشنز. انسان در حقیقت خسارے میں ہے سوائے ان چار جو عمل کرتے ہیں ان کے علاوہ. ایمان لائے, ایک عمل کرے, ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرے. ٹیم انڈیویجول کبھی بھی ہم اس دنیا کے اندر انقلاب نہیں لا سکتے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اجتماعیت کی ضرورت. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام رہا. تم میں سے ضرور کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں اور برائی سے تو. مائنڈ سیٹ, بیہیویئر, ٹیم. حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین یہ ٹیم میں ہوتا ہے, انڈیویجول نہیں ہوتا ہے. انڈیویجول بھی ہوتا ہے لیکن جو افیکٹو ہے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا, یعنی اپنے آپ کو ہی نہیں, پوری جو سوسائٹی کو ہے اس کی حق کی نصیحت کرنا. اور جب حق کی نصیحت ہم جب کرتے ہیں تو اس کے اندر کئی سارے ہمیں سیٹ بیکس ہوتے ہیں, کئی سارے جو ہے نا چیلنجز آتے ہیں, اور اس کو ہم میٹ کر سکتے ہیں. ٹیم ورک, کمیونیکیشن, ہمارے تعلقات. تو یہ تین چیزوں سے ہائی پرفارمنس جو ہے نا ہمارا بنتا ہے. مائنڈ سیٹ, بیہیویئر. ہائی پرفارمنس ہے کیا؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف دیٹ؟ ہائی پرفارمنس از اے اسٹیٹ ویئر یو اچیو یور گولس. کون سا بھی گول ہوں, آپ کا انڈیویجول گول ہوں یا آپ کا جو ہے نا کلیکٹیو گول ہوں, یا آرگنائزیشنل گول, یا کمپنی گول ہو, یا کوئی جماعت کا گول. اچیو یور گولس اینڈ کنسسٹنٹلی آپریٹ ایٹ یور پیک. اٹ از ناٹ اباؤٹ اوکیشنل بسٹ آف ایکسلنس. یعنی جب تھوڑا تھوڑا جو ہے نا کبھی موقع پڑ گیا, دل میں آ گیا تو ہم ایکسلنس کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد خاموش پڑ جا رہے ہیں, لیزینس آ جا رہا. دیٹ از ناٹ دا رائٹ وے.
सस्टेन्ड इफेक्टिवनेस के साथ कंसिस्टेंटली जो है ना परफॉर्मेंस देना, दैट इज हाई परफॉर्मेंस. हाई परफॉर्मर्स आर प्रेजेंट. वो न ज्यादा पास्ट के बारे में सोचते हैं, वो पास्ट के बारे में सोचते हैं कि हमने इस पास्ट से सीखना क्या है. अल्लाह तबारक व तआला को पास्ट के बारे में डिस्कस किया कुरान मजीद के अंदर. अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर डिस्कस किया, पूरे बकरा में डिस्कस किया अल्लाह ताला के जो इससे पहले जो कौमें थी वो क्यों बर्बाद हो गई, उससे आप सबक सीखो, उन जैसा मत बनो. तो वो पास्ट के बारे में सोचते नहीं है ऐसा क्यों हुआ, लेकिन वो लेसन ऑफ लर्निंग लेते हैं कि क्या लेसन हमें मिलते हैं पास्ट, और प्रेजेंट को सही इस्तेमाल करते हैं फोकस्ड वे में. मेक द मोस्ट ऑफ देयर एबिलिटी. इंपॉर्टेंट बात. अल्लाह ताला ने तुम्हें अपने काम के लिए चुन लिया, बात बताई. तो जब काम के लिए चुन लिया तो अल्लाह ताला आखिरत में यही पूछेगा कि मैंने तुम्हें सलाहियतें दी, मैंने तुम्हें वक्त दिया, मैंने तुम्हें जो है ना माल दिया, मैंने तुम्हें तकरीर करने की सलाहियत दी, मैंने तुम्हें एक बेहतरीन राइटर बनाया, मैंने तुम्हें एक बेस्ट आर्टिस्ट बनाया, मैंने तुम्हें एक बेस्ट फिल्म मेकर बनाया. इन तमाम सलाहियतों को क्या आपने मेरे राह में लगाई, ये हमें जरूर पूछे. यूटिलाइजेशन ऑफ आवर एबिलिटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट. सबसे बड़ा मैसेज ये है कि हाई परफॉर्मेंस का, कि हम प्रेजेंट में रहें, फोकस्ड काम करें, और हमारी जो एबिलिटीज हैं उनको अल्लाह की राह में लगाएं. क्योंकि अल्लाह ताला पूछेगा कि आपको मैंने पैसा दिया, आपको मैंने वक्त दिया, आपको मैंने तकरीर करने की सलाहियत दी, आपको मैंने ये सब तमाम चीजें, लेकिन दोस्ती है, नेटवर्क बहुत ज्यादा है, आपके कई सारे दोस्त हैं. फोन में निकाल के देखें तो कई सारे जो है ना हमारे गैर मुस्लिम भाई आप नंबर से कॉन्टैक्ट, कई मुसलमान भाइयों से कॉन्टैक्ट. आपका नेटवर्क अच्छा है तो उसको इस्तेमाल करना, ये तरीके से. यानी अल्लाह ताला हर फर्द को यूनिक बनाया, उस यूनिकनेस को हमें समझना चाहिए और हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए हमारे अंदर क्या टैलेंट, और उन टैलेंट्स को हम जो है इस्तेमाल करना सही करें. दिस इज व्हाट अबाउट हाई परफॉर्मेंस. अब आइए हम देखते हैं कि एक एक सेक्शन के अंदर क्या पॉइंट्स है जो हम पे हम फोकस करें. तो पहले माइंड सेट के ताल्लुक से मैं आपको बताता हूँ, तीन चीजें हैं जो हमें इसके ऊपर काम करना है. पहला काम ये है कि टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. माइंड सेट के अंदर टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब अल्लाह पर ईमान लाए तो सबसे पहली बात क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है उस ताल्लुक से. तो ईमान लाए अल्लाह पर तो एक्शन करना. तो एक्शन जब तक नहीं करेगा जब तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी. इस दुनिया के अंदर फेल्यूर्स अगर हुए हैं, चाहे वो इंडिविजुअल तौर पर क्यों ना हो, चाहे वो कलेक्टिव तौर पर एज ए ऑर्गेनाइजेशन टाइप क्यों ना हो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें दी गई उसको उन्होंने लिया नहीं अपने दिल से. मैंने अपने काम के लिए तुम्हें चुन लिया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. तो सबसे पहला जो माइंडसेट है जो हमको करना है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना. और दूसरा जो काम है माइंडसेट के अंदर वो है मोटिवेशन. गेट मोटिवेटेड. मोटिवेशन कभी भी जो है हमको बाहर से जो मोटिवेशन हमें मिलता है उससे जो है ना हम ज्यादा दूर तक नहीं चल सकते, अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते. एक्सटर्नल मोटिवेशन चंद दिनों तक रहता है. इंटरनल मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन हमारे अंदर होना चाहिए. मैं उसके ऊपर बात करूँ. तीसरी चीज है वो है मैनेज योर इमोशंस. ये माइंडसेट के अंदर आता है. टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी
गेट मोटिवेटेड, मैनेज योर इमोशन। ये 3 चीजें हैं जो माइंडसेट को हमें सिखाती हैं। फिर दूसरा जो बिहेवियर है, हाई परफॉर्मेंस बिहेवियर जो है, वो 3 चीजों से मिलता है। प्ले टू योर स्ट्रेंथ। हर इंसान के अंदर वीकनेस और स्ट्रेंथ दो होती है। हमको वीकनेस पे फोकस नहीं करना है, हमको हमारे स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करना और उसको इस्तेमाल करना है। वीकनेस नहीं है बोल के ये वीकनेस है रोते हुए बैठना नहीं। जो स्ट्रेंथ हमारे अंदर है उस स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करना, ये हाई परफॉर्मेंस एक्शन के अंदर जो है ना आता है। आइडेंटिफाइंग योर स्ट्रेंथ, इग्नोर योर वीकनेस, उसको इम्प्रोवाइज कीजिए, उसको अपॉर्चुनिटीज में तब्दील कीजिए, मगर फोकस हमारा जो एरिया है वो हमारा स्ट्रेंथ क्या है और उसको कैसा है। आज दुनिया में जितने भी जो है ना बड़े बड़े कंपनीज हैं या बड़े बड़े इनकलाब आए, क्या काम करें, लीडरशिप क्या क्या देखें, वो बंदे के अंदर क्या सलाहियत है, उसके सलाहियत के मुताबिक उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और वो कर गुजरता है। ये चीजें जो है ना। और बिहेवियर के अंदर सबसे पहली बात ये है कि प्ले टू योर स्ट्रेंथ। और दूसरी बात जो है ना, गेट फ्लेक्सिबल। जो ग्रोथ माइंडसेट है वो यही बोलता है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फिक्स्ड नहीं होना चाहिए, अडॉप्टेबल होना चाहिए। सिचुएशन को एक प्लान बनाए और प्लान सक्सेस नहीं हुआ तो फिर जो है ना हमको नेक्स्ट जो सिचुएशन क्या डिमांड करता है, हम कैसा जो है ना उसको उस सेटबैक को लेकर जो है ना कैसा फर्दर आगे बढ़े। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, हमारी पर्सनल लाइफ में फ्लेक्सिबल होना चाहिए और सोशल लाइफ में भी हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जो बंदा फ्लेक्सिबल नहीं है वो जल्दी जो है ना हार मान लेता है, इरिटेट होता है और वो हथियार डाल देता है। चाहे वो घर में देखिए आप, सालन अच्छा नहीं पका या हमारा बच्चा कुछ बात बोले तो नहीं सुना, हम आदी हो जाते हैं चीजों पे और हमें गुस्सा आ जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना, अडॉप्टेबल, अकॉर्डिंग टू द नीड्स वी हैव टू अडॉप्ट। बाहर रहे जब एसी की आदत होती, फिर घर आए जब एसी हमारे घर में नहीं होती तो गर्मा बहुत ज्यादा होता है, फिर इसको कैसा मैनेज करें। तो हमारी पर्सनालिटी को बनाना चाहिए, चेंजेस लेके आना चाहिए, वो है आपका गेट फ्लेक्सिबल। तीसरा है फाइंड योर नॉन नेगोशिएबल। नॉन नेगोशिएबल्स, ये सबसे बड़ा राज है जो सक्सेसफुल कंपनीज के लिए या सक्सेसफुल एथलीट के लिए या सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए इस्तेमाल होता है। वो चंद चीजों के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। सबसे बड़ी बात वक्त। मैं एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ, अगर हर नमाज में आप लेट हो रहे हैं सुस्ती काहली की वजह से या नहीं जा सक रहे घर में पढ़ ले रहे, तो उसका मतलब आपको टाइम का इंपॉर्टेंस मालूम है। हमेशा याद रखिए, नमाज अगर 5 बजे है तो आप 15 मिनट पहले निकलिए। हमें 5 बजे निकलने की आदत है और शैतान जो है ना अटैक करता है कि 5 मिनट कम है, अब तुम निकलोगे तो जो है ना तुम्हारी गाड़ी वहां तक नहीं पहुंच सकती या पैदल नहीं जा सकती, इसलिए घर पर। सबसे बड़ा जो टाइम है तो हम उस जगह जाएं जहां, चाहे वो मीटिंग्स हो, चाहे वो इज्तिमात हो, चाहे वो अपनी कंपनी का काम क्यों ना हो, कौन सा भी काम क्यों ना हो, 15 मिनट पहले रहने की कोशिश करें। निकले भी ना, रहने की कोशिश करें। 10 मिनट कम, मिनिमम 10 मिनट पहले, यानी 5 बजे जमात है तो 10 मिनट कम 5 में आप मस्जिद में रहना चाहिए। जिक्र कीजिए, लोगों से बातचीत कीजिए, कनेक्शन बनाइए। और जो बंदा ओवरऑल, चाहे वो क्रिकेट मैचेस हों दो, चाहे वो फुटबॉल मैच हों दो, रग्बी मैच हों दो, कौन से भी हों दो, तो बेस्ट जो कोच होता है वो 10 मिनट पहले वहां पर रहने के लिए कहता है। और जो बंदा ये काम करेगा वो जो है ना आगे लाइफ में सक्सेस। तो थोड़े हमारे लाइफ के अंदर नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। वो चीजें जो है ना हमें सीख। और जो आखिरी है, टीम।
یہ ٹیمز جو ہے بہت ساری چیزیں اس کے اندر امپورٹنٹ چیزیں، سب سے بہترین جو کلچر ہے. ہم جس آرگنائزیشن میں رہتے ہیں اس آرگنائزیشن کا کلچر دیکھیے. اگزامپل میں بتاتا ہوں، اگر کوئی اجتماع کو آتا ہے، نیا بندہ جب جوائن ہوگا تو اس کو محسوس ہونا چاہیے کہ کوئی پرانا بندہ جو ہے نا لیٹ نہیں آتا. 5 منٹ پہلے آ رہا، وہ شیم فل محسوس کرتا وہ اگر لیٹ آ گیا. کیا ہمارے اندر، ہمارے اجتماعات کے اندر ایک کلچر ہے؟ ہمارے جو پیرس ہیں، ہمارے جو سینئرز ہیں، وہ اس کلچر کو ڈیولپ کرنے کے اندر، لیڈرشپ ٹیم جو ہے وہ اس کلچر کو ڈیولپ کرنے کے اندر فوکس کرنا چاہیے. اگر ایسا آلریڈی آپ کے پیرس، آپ کے سینئر، آپ کے لیڈرشپ ٹیم 10 منٹ لیٹ آ رہے ہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی اس کے اوپر گفتگو نہیں، تو آنے والا پہلا دن ٹائم پہ آئے گا، دوسرے اجتماع سے وہ خود لیٹ آنا شروع ہوتا ہے. بھائی کلچر ہی کیسا ہے. تو اس کے تعلق گھر کا کلچر دیکھیے کیا ہے. گھر کے اندر جو ہے نا ہمارے پاس کیا کلچر ہے، ماں باپ کیا کلچر سیٹ کرتے ہیں، بڑے بھائی بہن کیا کلچر سیٹ کرتے ہیں. ان چیزوں پہ ہمیں کام کرنا ہے. اور تیسری بات، لیڈرشپ. لیڈرشپ ہم فیلیور انڈیویجول نہیں ہوتے، ہم سکسس انڈیویجول سے حاصل نہیں کر سکتے. ہم اگر فیل ہوتے ہیں ایز اے گروپ فیل ہوتے ہیں، ایز اے آرگنائزیشن فیل ہوتے ہیں. تو جب تک لیڈر جو ہے نا اس گروپ کو صحیح طریقے سے نہیں لے کے جائیں گا، لیڈ فرام دا فرنٹ نہیں کرے گا، تو ہم جو ہے یہ جو بڑا جو کام ہے اس دنیا میں، اقامت دین، اللہ کے دین کو قائم کرنا، یہ جب تک ہم اجتماعیت کے اندر نہیں آئے تو پھر یہ جو ہے نا ہم آگے اس چیز کو ہم حاصل نہیں کر سکتے. یہ دراصل چیز ہے. اس کے اندر تعلقات ہیں جو میں ڈسکس کیا آپ سے. ہمارا تعلق، جب تک اللہ سے ہمارا تعلق گہرا نہیں ہوگا دوسرے تعلقات مضبوط نہیں ہو سکتے. تعلقات، کلچر اور لیڈرشپ، یہ 3 چیزیں ہیں جو ہمیں ہائی پرفارمنس کی طرف لے جاتی ہیں. یہ پورے کے پورے 8 چیزیں. تعلقات اسی کے اندر آ گیا. ٹیمز کے اندر 2 پوائنٹ ہے. ایک ہے کلچر، اور کلچر کو کریٹ کرنے میں لیڈرشپ ٹیم کا ہاتھ ہوتا ہے. اور لیڈرشپ جو ہے، پہلی چیز تعلقات بہتر کرنا چاہیے. لیڈر یہ نہیں ہے کہ آرڈر دیں اور ہو جائیں، ایسا نہیں. پہلے کنیکشن ہونا، کنیکٹ ہونا افراد سے، ان کے پرابلمس کو سمجھنا، ان کو ہیلپ کرنا. یہ دراصل چیز ہے جو ہمیں فوکس کرنی چاہیے. آئیے اب دیکھتے ہیں ایک ایک کے اوپر. ایک ریسپانسبلٹی کے اندر دیکھیے کہ 3 چیزیں امپورٹنٹ ہے ایک ریسپانسبلٹی کے اندر. اگر ایک سیٹ بیک اگر ہمیں ہو گیا، ایک نہ ہونے والی چیز اگر ہو گئی، تو پھر جب ہم کو ریسپانسبلٹی جو ہے نا کانسیپٹ یہاں پر آتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں. تو 2 چیزیں ہوتے ہیں کبھی بھی. اگر کوئی چیز ہمارے سے جو حاصل کرنا ہے، جو سکسس حاصل کرنا ہے، جو گول ہے وہ حاصل نہیں ہوا، اس کے اندر کنٹرولبلس اور نان کنٹرولبلس. ہمارا جو فوکس ہے یہ ٹیک ریسپانسبلٹی 3 چیزوں پر ڈیپینڈ ہے. ہم صرف ان چیزوں کو ہی فوکس کرنا چاہیے جو کنٹرولبل ہے. ہمارے ٹیکنگ ریسپانسبلٹی فار یور لائف، فرسٹ isolate the elements of your situation that you can control. یعنی آپ جو کنٹرول، آپ کے کنٹرول میں جو چیزیں ہیں پہلے اس پہ بات، اس پر کام کیجیے. ٹیک ریسپانسبلٹی کے اندر فرسٹ اسٹیپ وہ ہے. اگر دیکھیے ہمارے ارد گرد ہم جب بات چیت کرتے ہیں تو ہم بات چیت کرتے ہیں فلاں آدمی ایسا کر لیا، فلاں پڑوسی ایسا ہے، فلاں جو ہے نا لیڈر نے یہ کام کر لیا، پولیٹیکل ونگ میں یہ جو ہو گیا.
Why are you focusing on concerns? Don't focus on concerns. Focus on which are your under control. अपने बारे में, अपने दायरे के अंदर जो चीजें आती हैं उसके बारे में. Don't play blame game. एक्सटर्नल फैक्टर्स को जो ब्लेम करते हैं वो कभी भी हाई परफॉर्मर नहीं हो सकता. हाई परफॉर्मर वो है who takes the responsibility, or the person who takes the responsibility, the first step is he will focus on what is controllable to him. First, isolate the elements of your situation that you can control and spend your time attention on them. अगर ये चीज आज मेरी फेल्यूर हो गई तो क्यों हुई, वजह क्या है उसकी. उसके अंदर कंट्रोलेबल नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स है. जो हमारा नॉन कंट्रोलेबल है उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना. रिस्पॉन्ड सिर्फ उसको ही करना है कि फ्यूचर में सेम गोल मुझे अचीव करना है तो मुझे करना क्या है. वो ये चीज है कि मेरे कंट्रोल में क्या चीज है, मैं कैसा जो है ना वो कर सकता हूँ. एक एक क्रिकेटर है, आजकल क्रिकेट बहुत चल रहा है, ऋषभ पंत, शायद मेरे ख्याल से, याद नहीं है मुझे, कि जो उसका एक्सीडेंट हो गया फिर वो कम बैक करा. अरे मैं इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता, मैं क्या करना. बोले तो नहीं होता. क्या स्टेप्स है, स्टेप वन से ये चीजें जो है कंट्रोलेबल क्या है मेरे अंदर और मैं उस पर फोकस करूंगा. This is what we needed. Spend time and your attention on that. कंट्रोलेबल एस्पेक्ट क्या है मेरे कंट्रोल में. दूसरी चीज है फोकस ऑन द इश्यूज एट हैंड. यानी आपको कई सारे हैं लेकिन आपके हैंड, एट दी हैंड, सबसे पहला हमें जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है उसको आइडेंटिफाई करो. इशू एट हैंड, उस पर फोकस. अब मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे पास इसका इलाज कैसा करना, कौन सा बेस्ट डॉक्टर है, क्या मेरे लेग्स रिकवरेबल है या नहीं है. मोहम्मद शमी शमी उसका ऑपरेशन हुआ इंग्लैंड में मेरे ख्याल. मैं थोड़ा क्रिकेट से, मेरा छोटा लड़का है वो क्रिकेट ज्यादा खेलता है, हमेशा मेरे से डिस्कस करता है. बता रहा हूँ एक एग्जांपल, आप भी आजकल क्रिकेट देख रहे हैं मेरे ख्याल. तो इश्यूज एट हैंड जो है उसको हम वो कर लेंगे और एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्ड. रिएक्शन नहीं देना है. अब एक घर से निकले, घर में जो है ना थोड़ा सा क्या हुआ, चाय ठीक नहीं थी और मूड ऑफ हो गया हमारा, सर में दर्द हो रहा होगा. अब कार जो है ना ऐसा निकाले, फिर जाके जो है ना एक एक्सीडेंट हो गया, फला हो गया, फिर ऑफिस में गए, ऑफिस में. ये तो तमाम चीजें क्या है, ये रिएक्शन है. डोंट रिएक्ट, थिंक कूलली एंड रिस्पॉन्ड. रिस्पॉन्ड वो है जो कंट्रोलेबल थिंग्स, इश्यूज एट द हैंड है. इन तमाम चीजों को हम करते हैं टेक द रिस्पॉन्स. ये फर्स्ट स्टेप है हाई परफॉर्मेंस. और जो नॉन परफॉर्मर्स है या लो परफॉर्मर्स है वो ब्लेम गेम खेल रहे हैं, इसकी वजह से हुआ, ये सिचुएशन ऐसा हुआ था तो ऐसा हुआ. यानी जो कंट्रोल नहीं है उनके हाथ में, उन चीजों को ब्लेम करते हैं और बचने की कोशिश करते हैं. वो कभी भी हाई परफॉर्मर नहीं. ये चीज हमें ठीक करना है. कुरान की रोशनी में देखें क्या टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारे पास है वो पता है. 2 आयतों का यहाँ पर जो है ना जिक्र है. And we have not burdened any soul beyond its capacity. This verse emphasizes the personal accountability. Taking responsibility for your actions aligns with the idea that you are not overwhelmed by burdens, but empowered to make choices and face the consequences. Face the consequences. Choice लो. Make choice. Face the consequences. Take 100% responsibility. क्या अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारे ऊपर मैं वो जिम्मेदारी हरगिज नहीं डालूंगा जो तुम उसको बर्दाश्त नहीं कर. And when we have decided, then rely upon Allah. Indeed, Allah loves those who rely upon. जब एक डिसीजन ले लिया आप तो अल्लाह पे तवक्कुल करो.
यकीन के साथ अल्लाह ताला मुझे इससे कामयाबी, तो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ये आयत भी हमें गेट करती है. हाई परफॉर्मर्स टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शन, बट दे आल्सो रिकॉग्नाइज दैट अल्टीमेट कंट्रोल लाइज विद अल्लाह, ट्रस्टिंग इन हिज प्लान. ये माइंडसेट के अंदर आती है. ये चीजों पे हमें फोकस करना चाहिए. दूसरी चीज, गेट मोटिवेटेड ओनिंग योर वाई. मैं सबसे पहला जो शुरुआत प्रोग्राम की वो है वाई बिकमिंग द बेस्ट. हर काम शुरू करने से पहले वाई के ताल्लुक से, और कितना टाइम है इसको मुकम्मल करने के लिए? तो वाई जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के अंदर. हर काम करने से पहले वाई के बाद. वाई हाई परफॉर्मेंस? बिकॉज यू हैव टू बिकम द बेस्ट. बिकम द बेस्ट हेलो। नॉट पॉसिबल विदाउट. हाँ जी. और कितना और टाइम है पाँच मुझे? 3-4 मिनट में हाँ, अगर कंप्लीट कर लेंगे तो ठीक है, ठीक है. बेहतर रहेगा. मैं मैक्सिमम कवर किया. अगर हो सके तो इस सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे, अगर सहूलत मिले तो, मैं या फिर कभी इंशाल्लाह. असल में यहाँ मगरिब से ईशान के ठीक है, दरमियान का वक्त होता है. ईशान की ठीक है. अज़ान हो जाएगी, अब यही मसला है. अच्छी बात है, अच्छी बात है. तो दूसरी जो चीज है गेट मोटिवेटेड है. मोटिवेशन तीन चीजों से हमें मिलता है. एक है इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी. यानी आप थोपना नहीं लाके जो है, आप इंडिपेंडेंट है ना डिसीजन लेने के ताल्लुक से. कौन सा भी अगर आप काम कर रहे हैं तो आप वो इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए के ताल्लुक से. चाहे वो हमारे बच्चे की गोल्स क्यों ना हो. बच्चे के ऊपर हम आईआईटी बनना है, डॉक्टर बनना है तुझे, आईएएस ऑफिसर बनना है, ये थोपते हैं. नहीं, ऐसा नहीं. बच्चे को खुद डिसीजन लेना है, उसको किसके अंदर उसको जो है ना आगे बढ़ना है, तो वो है ऑटोनॉमी देना चाहिए. फिर कॉम्पिटेंस, उस गोल को अचीव करने के लिए कौन सी कॉम्पिटेंसी, कौन सी स्किल की जरूरत है, उस पर जो हमें focus करना चाहिए. और बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. और गेट मोटिवेटेड कुरान क्या है, हमें क्या देता है? आस्क एंड से, work for indeed Allah will see your work and your messenger and the believers, and you will be returned to the knower of the unseen and the witness. He will inform you what you are used to. ये है देखिए मोटिवेशन. यानी हमें हाई परफॉर्मेंस देना है इस दुनिया के अंदर, तो अल्लाह ताला को जाके जवाब देना है हर चीज का, हमारे कैपेबिलिटीज का, हमारे हर चीज का. तो ये है इंटरनल इंट्रिंसिक मोटिवेशन. This verse highlights the importance of intention and purpose. Owing your why aligns with the working towards goals that will be acknowledged by God, motivates you to the journey. ये इंडिविजुअल काम, हमारा हर काम अल्लाह की रजामंदी के लिए. कोई काम हमारा बेकार, हर चीज इबादत है. जब हम अल्लाह के बताए हुए दायरे के अंदर काम करेंगे, और जिन चीजों से रुकने को कहा रुक जाएंगे, हमारा सोना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा नौकरी करना, घर वालों को खिलाना, हराम काम से बचना, हलाल कामों में जो है ना सर्फ करना, हर चीज जो है ना इबादत. फिर मैनेज योर इमोशंस. तीसरा माइंडसेट का तीसरा जो कॉन्सेप्ट है, इमोशंस जो है कंट्रोल में होना चाहिए. कभी भी रेस्पॉन्ड करने से पहले एक पॉज कीजिए कि मुझे क्या करना है. गुस्सा आ रहा है तो उसको कैसा कंट्रोल करना चाहिए. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बताए. एंड सेकंड थिंग, व्हाट स्किल्स डू यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो कैसा जो है ना हम हल कर सकते हैं, और मेरे पास स्किल्स क्या है. अगर नहीं है तो फिर दूसरों को अप्रोच करना. अगर ये लॉस हो गया तो भी तवक्कुल अल्लाह. क्या स्टेक में जा रहा? कुछ नहीं जाता हमारा. लॉस होता, अल्लाह बेहतर है. तो ऐसे वक्त में हमें क्या काम करना चाहिए? अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला ने फरमाया पेशेंस इन प्रेयर. वही आयत, इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है.
And you who have believed, seek help through, अल्लाह की हेल्प लो, पेशेंस से सब्र करो और मुसल्ला बिछाओ और अल्लाह से कनेक्ट करो कि अल्लाह ये मेरा प्रॉब्लम है। अल्लाह से बढ़कर कौन है जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर। चौथी चीज जो है ना, प्ले योर स्ट्रेंथ। मैंने बताया पहले, रिकॉग्नाइज करना हमारी स्ट्रेंथ क्या है, ये रिफ्लेक्शन से आता है। हमेशा हमारे एक्टिविटीज को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, हमारे स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना। रिफ्लेक्शन से आइडेंटिफिकेशन होता है, रिकॉग्नाइज करना है। पहले एक्सटर्नल रिकॉग्नाइज करना है, इंटरनल के लिए रिफ्लेक्ट करना है, इसमें इंटरेस्ट है, क्या है, कैसा है, फिर उस स्ट्रेंथ पे हमें काम करना चाहिए। ये चीज हमें करने की जरूरत है। अल्लाह ताला फरमाता है from the abundance we have favored some over others with provisions, but your Lord is on one who distributes provision, and your Lord is neither unjust in deprivation nor excessive in favor. This verse highlights the idea that Allah grants us unique gifts and abilities. Playing to your strengths aligns with recognizing utilizing these talents in place, utilizing using your gifts और इसको कम्युनिटी के काज के लिए इस्तेमाल करना, फैमिली के जो है ना हेल्प के लिए इस्तेमाल करना, सोसाइटी के हेल्प के लिए काम करना, लोगों को अपने सलाहियतों से दीन की दावत की तरफ बुलाना, ये दरअसल काम है हमें करना चाहिए। और 4 चीजें हैं, अल्लाह ताला अगर इंशाल्लाह मौका दिया तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में इसको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। मैं बहरीन उर्दू कम्युनिटी का जो है ना शुक्रगुजार हूँ, जो उन्होंने मुझे काबिल समझा कि आप सामने चंद बातें करने की मैं कोशिश मैंने अपनी पूरी की। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस कोशिश को कबूल फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह खैर आरिफ इरफान साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से वजाहिदु फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिही वज्तबाकुम के आयत के ज़रिए अपनी बात रखी। अपना रिश्ता अल्लाह से मजबूत करना, अपना रिश्ता घर वालों से मजबूत करना, अपना रिश्ता सोसाइटी से मजबूत करना, माइंड सेट, बिहेवियर, टीम वर्क, इंटरनल मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन, इस तरह की मुफीद बातों से आपने अपनी बात रखी। हदीस में आता है कि मन ला यशकुरिन्नास ला यशकुरुल्लाह, जिसने बंदों का शुक्र अदा नहीं किया दरअसल उसने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना वक्त दिया, अपनी सलाहियतें दी, अपना इल्म हमें हमारे जो बातें हमारे हमारे सामने आई उसको समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। इंशाअल्लाह ताला सेशन का अख्तिताम होता है, नमाज यहीं पर होगी जमात के साथ। नमाज के बाद जो है आप लोग अपनी अपनी जगह जा सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।